Good morning, students. In our last class, we have completed the 3 chapters of your textbook. I have shared the exercises of your textbooks and I have also orally dictated it. Now we are moving forward and today I am going to share with you 2 chapters exercises. The first exercise which I am going to share is, as you are seeing on the screen, chapter number, it's the poem, The Quarrel. And in this poem you have to write only the third question's answer in your notebook. Obviously this is such a question whose answers may vary. अलग अलग बच्चे इसका अलग भी आंसर लिख सकते हैं, बट फिर भी मैं अपना एक आंसर शेयर कर रहा हूँ आपके लिए. आप चाहो तो इसे लिख सकते हो. क्वेश्चन द क्वारल पोएम का है. थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब ए रिसेंट क्वारल that you have had with your brother, sister or friend. How did it start and what did you quarrel about and how did it end? तो देखो स्टूडेंट्स, इसका आंसर लिख सकते हो ये वाला कि सोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड एट स्कूल. I invited him to my birthday party but he did not turn up for my birthday celebrations. Suddenly he started behaving awkwardly and our friendship turned bitter. Next day at school we had an argument about the incident. We both did not talk to each other for a few days. We both remained tensed and sad on those days. Although we have missed each other, we decided to patch up. Therefore, we confronted each other and resolved our differences amicably. AMICABLY. We shook hands and hugged each other and promised to renew our friendship in a fresh manner. इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 4 क्या है, एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला. इस चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कल्पना चावला चैप्टर का. और इसमें 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन हैं और देखते हैं इनका क्या आंसर होता है. तो प्लीज़ टेक आउट पेज नंबर 50 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड वहाँ जो 1 से 6 तक क्वेश्चन दिए हुए ये यहाँ स्क्रीन में भी आप देख पा रहे हो. तो पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज कल्पना चावला बॉर्न? वाई इज सी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन? तो आप लिखना, कल्पना चावला वाज बॉर्न एट करनाल इन हरियाणा. सी वाज बॉर्न इन इंडिया बट मैरिड टू एन अमेरिकन एंड बिकेम ए नेचुरलाइज्ड सिटीजन. That is why she is called an Indian American. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 4 का फर्स्ट का आंसर है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो. क्वेश्चन है, when and why did she go to the US? Who did she marry? तो आंसर लिख सकते हो, after completing her bachelor degree in aeronautical engineering, she went to the US for master degree in aeronautical engineering. She married to an American, Jane Pierre Harrison, who was a flight instructor. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है, how did she become an astronaut? What gave her the idea that she could be an astronaut? आंसर लिख सकते हो आप. After completing her bachelor degree in aeronautical engineering, she went to the US for master degree in aeronautical engineering. She earned her PhD in aerospace engineering and was selected by NASA for training as an astronaut in 1994. People
around her always encouraged to become what she wanted. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड सी बिकम एन एस्ट्रोनॉट. सॉरी, थर्ड तो हमने किया अभी. फोर्थ है क्वेश्चन, what abilities must an astronaut have according to the journalist. फोर्थ क्वेश्चन. तो इसका आंसर आप जो है ये लिख सकते हो कि एन एस्ट्रोनॉट should have a lots of knowledge about aeronautical engineering and biology. ये इतना लिखना ही काफ़ी होगा. हालांकि और भी कुछ इसमें आ सकते हैं पॉइंट एक दो, लेकिन घुमा फिरा करके ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में वो सारे सेक्टर्स आ जाते हैं. तो आंसर फिर से रिपीट कर रहा हूँ 4 का, एन एस्ट्रोनॉट शुड हैव ए लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजी. फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन इन स्पेस. तो आप इसका आंसर लिख सकते हो कि कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. During this time, she went around the earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. Among her colleagues were a Japanese and a Ukrainian astronauts. They performed so many experiments. Sixth question है, what does Kalpana Chawla say about pursuing a dream? Do you agree with her that success is possible? तो स्टूडेंट्स आप इसका आंसर ये लिख सकते हो कि कल्पना said the path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get onto it. Wishing you a great journey. Yes, I do agree with her. If we make a goal and work hard for the same, later or sooner we will definitely achieve it. तो इस तरह से ये आपके 6 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बताए, जो आपको वर्ड मीनिंग्स लिखने के बाद अपनी नोटबुक में उतारने हैं. इसके बाद जो बी नंबर है, पेज 51 का बी नंबर, उसको आप बुक में ही कर लेना विद पेंसिल. देख सकते हो आप, इनके आंसर मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ. रीड द न्यूज़पेपर. आप पेज 51 का क्वेश्चन देखो पहले. रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कोलंबियाज इल फेटेड वॉयज. डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ. ये आप स्क्रीन में सारे देख पा रहे हो. इसका आंसर लिखोगे 16 जनवरी 2003. नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड का आंसर लिखोगे 7. नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस का आप लिखोगे अबाउट 16 डेज, या पूरा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स. नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट्स का आप लिखोगे 80 एक्सपेरिमेंट्स. डेट ऑफ रिटर्न जर्नी का लिखोगे 1 फरवरी 2003. हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट का लिखोगे 2 लाख या 200,000, एक ही बात है. ये इंटरनेशनल वे में लिखा गया है. आप 2 लाख भी लिख सकते हो, या 200,000 फिट और 2 लाख फिट. ठीक. इसके बाद मैचिंग है, तो ये मैचिंग का आंसर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी होगा a sad incident of a kind that has never happened before in space. Certified flight instructor का आंसर होगा a person with the correct qualification to teach people to fly planes. थर्ड है स्पेस मिशन. इसका आंसर होगा a set of jobs to be done in space by a group. सुपर स्पेशलाइजेशन का आंसर होगा ग्रेट एक्सपर्टाइज इन ए लिमिटेड फील्ड और ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मीन्स लास्ट वाला होगा. इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज
का होगा हैविंग नॉलेज ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। ऑ इंस्पायरिंग का आंसर होगा समथिंग दैट कॉजेस फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर। और इन दिस एज का आंसर होगा नाउअडेज इन दिस टाइम्स। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद ये जो क्वेश्चन बी है पेज 52 का, ये थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनके आंसर्स, बिकॉज ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। लिखा है यूज दिस फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन आफ्टर फाइंडिंग आउट देयर मीनिंग्स। तो इनके मीनिंग्स जो है थोड़े से, ये सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं और फ्रेजल वर्ब के वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स नहीं होते, एक डिफरेंट मीनिंग फ्रेजल वर्ब का होता है। थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि फ्रेजल वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड प्रीपोजिशन। मतलब वर्ब और प्रीपोजिशन को मिल करके फ्रेजल वर्ब बनते हैं। फॉर एग्जांपल आप बी का वन देखो, ब्रोक अपार्ट, या एक आसान सा अगर देखो, आसान सा अगर मैं आपको बताऊं तो 8 नंबर जैसे देखो, ऑन बोर्ड। तो ऑन बोर्ड जो है इसमें ऑन प्रीपोजिशन है और बोर्ड वर्ब है। उसी प्रकार से 6 वाला अगर देखो, वेंट ऑन, तो वेंट वर्ब है, ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है। या फिर कैरी ऑन अगर देखो 9 वाला, तो कैरी ऑन में कैरी वर्ब है, कैरी वर्ब है और ऑन प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन और वर्ब को मिलकर के फ्रेजल वर्ब बनते हैं। और फ्रेजल वर्ब के मीनिंग जो है वो वर्ड टू वर्ड नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। वेंट ऑन, अब वैसे तो वेंट का मतलब होता है, अगर हम लोग 6 नंबर, जैसे मैं 6 नंबर की बात कर रहा हूँ, वेंट ऑन, तो अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे तो वेंट ऑन का मतलब हो जाएगा, वेंट मतलब कहीं गया था, ऑन का मतलब लगातार, जैसे एक तरफ से किसी चीज़ के ऊपर से चलना, तो कहीं किसी चीज़ के ऊपर से गया था। बट ये वेंट ऑन का मतलब नहीं है। वेंट ऑन का मतलब कंटिन्यूड, लगातार कोई काम को करना होगा। वेंट ऑन का मतलब गया था नहीं। तो वर्ड टू वर्ड इनके मीनिंग नहीं होते, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देयर वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स। तो इसलिए थोड़े से मुश्किल होते हैं ये, और इनका बाकायदा एक अलग से चैप्टर है जो ग्रामर में पढ़ाया जाता है। खैर, ब्रोक अपार्ट ये एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनके आंसर्स आपको, ये आंसर्स ऑब्वियसली नोटबुक में ही लिखने हैं। याद रखना, जिसका भी स्पेस नहीं है बुक में करने का, उसे नोटबुक में करना है। जैसे कि अभी जो 2 एक्सरसाइज मैंने शेयर की, बी नंबर वाले फिलिंग द ब्लैंक्स हमने अभी भी किए, फिर मैच द फॉलोइंग किया, ये तो दोनों बुक में हो जाएंगे। लेकिन पेज 52 का ये बी जो है फ्रेजल वर्ब, इसके लिए तो बुक में स्पेस ही नहीं है। तो स्पेस नहीं है तो आपको नोटबुक में उतारना है, स्पेस है तो बुक में उतार लो। तो ब्रोक अपार्ट का क्या है, सेपरेटेड, इसका मीनिंग है ये। तो इससे मेक सेंटेंस बनाना है, द टू फ्रेंड्स ब्रोक अपार्ट जस्ट बिकॉज ऑफ सम कंफ्यूजन। दो दोस्त अलग हो गए कुछ कंफ्यूजन के कारण। स्ट्रिक्ट ओवर, लेफ्ट थिन लाइन, स्ट्रिक्ट ओवर का लेफ्ट थिन लाइन आप लिख सकते हो। द जेट प्लेन, इसको PLANE करोगे, द जेट प्लेन स्ट्रिक्ट ओवर द बिल्डिंग हाई इन द स्काई। स्प्रेड अक्रॉस का वर्ड मीनिंग है, या इसका जो मीनिंग है वो है वाइडली नोन, विख्यात यानी फेमस। ठीक है, तो मेक सेंटेंस हो सकता है, ड्यूरिंग अक्टूबर द डेंगू फीवर वॉज स्प्रेड अक्रॉस द सिटी। लिफ्टेड ऑफ का मतलब है रोज फ्रॉम द लॉन्चिंग साइट, रोज फ्रॉम द लॉन्चिंग साइट। तो इसका आंसर आप लिखोगे, द हेलीकॉप्टर लिफ्टेड ऑफ द हेलीपैड with all of its passengers। फिर ब्लास्ट ऑफ जो है, आप ये 5th नंबर ब्लास्ट ऑफ, इसका वर्ड मीनिंग है टेक ऑफ नॉइजली। ठीक है, और इसका जो ये होगा, क्या बोलते हैं, इसका जो मेक सेंटेंस है वो लिख सकते हो, नॉर्मली द सैटेलाइट्स ब्लास्टेड ऑफ इन द मॉर्निंग टाइम। वेंट ऑन का मतलब कंटिन्यूड है, मेक सेंटेंस कर सकते हो, द डिबेट कंपटीशन वेंट ऑन फॉर 5 hours। चीयर्ड अलॉन्ग का मतलब एनकरेज्ड है, इसका मेक सेंटेंस होगा, ड्यूरिंग द मैच प्लेयर्स वर चीयर्ड अलॉन्ग विद देयर फैंस आफ्टर वेरी गुड
शॉर्ट। ऑन बोर्ड का वर्ड मीनिंग है इनसाइड द प्लेन। आंसर होगा, आई मीन मिक्स सेंटेंस होगा, द शिप हैज अबाउट 400 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। कैरी ऑन, कैरी ऑन का वर्ड मीनिंग है कंटिन्यू डूइंग, और इसका आंसर होगा ही वॉज, ये थोड़ा सा मिस्टेक है स्टूडेंट्स, आप ही वॉज कैरी ऑन नहीं लिखना, आप लिखना ही कैरिड ऑन, CARRIED करना, वॉज कैरी नहीं होता है, आप लिखोगे ही कैरिड ऑन, कैरी की जगह कैरिड हो जाएगा। हम लोग टेंस थोड़ा सा बदल सकते हैं, मतलब फ्रेजल वर्ब में वर्ब का टेंस अगर हम लोग थोड़ा सा बदलना चाहें, फ्यूचर या पास्ट करना चाहें, तो इट इज़ अलाउड, मेक सेंटेंस में ये अलाउड है। तो आप इसको लिखोगे he carried, CARRIED on, he carried on studying even after exams were over। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने बी नंबर का आंसर शेयर किया आपके साथ। इसके बाद आप जो है देख सकते हो बी नंबर का आंसर शेयर करने के बाद स्टूडेंट्स, अब जो मैं आपके साथ आंसर शेयर करने वाला हूँ वो वाला एक्चुअली पेज 53 का बी नंबर है। ये आप स्क्रीन में जो देख पा रहे हो ये पेज 53 का बी नंबर है। गिवन बिलो आर सम वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड डिफरेंटली इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंगली। मतलब ब्रिटिश इंग्लिश एक होती है जो इंग्लैंड में बोली जाती है, और अमेरिकन इंग्लिश ऑब्वियसली USA या अमेरिका में बोली जाती है। तो अमेरिकन लोग जो इंग्लिश बोलते हैं और ब्रिटिश लोग जो इंग्लिश बोलते हैं उनके टोन में, ठीक है, उनके एसेंट में, मतलब बोलने का जो तरीका है उसमें डिफरेंस होता है, और जो वो लोग वर्ड्स भी कुछ लिखते हैं वो भी इस प्रकार से डिफरेंस थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो क्या डिफरेंस है उस हिसाब से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कलर, COLOUR जो वर्ड हम लिखते हैं, ऑब्वियसली हम लोग आज तक COLOUR वर्ड ही लिखते आ रहे हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में से COLOR लिखते हैं। अमेरिकन इंग्लिश एक्चुअली थोड़ा सा कुछ वर्ड को मिस करती है, मतलब कुछ जब कोई शब्द लिखते हैं उसमें कोई कोई लेटर मिस होता है अमेरिकन इंग्लिश में, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसा नहीं है। ब्रिटिश इंग्लिश में पूरा वर्ड लिखा जाता है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो लेफ्ट वाले वर्ड तो सही हैं ही, राइट वाले वर्ड भी सही हैं। अमेरिकन इंग्लिश के वे से देखा जाए तो दाहिने वाले वर्ड भी सही है। COLOR भी लिख सकते हो, LABOUR को आप LABOR लिख सकते हो, TRAVELLER हम लोग ट्रैवलर का स्पेलिंग यही जानते हैं, लेकिन TRAVELER अगर लिखते हैं तो कई लोग, इवन कई बार टीचर भी गलती समझ लेते हैं इसको, लेकिन ये गलत नहीं है, ये अमेरिकन इंग्लिश है। अच्छा, काउंसलर का स्पेलिंग लेफ्ट वाला ही हम लोग लिखते आ रहे हैं, राइट वाला भी सही है। सेंटर CENTRE लिखते हैं हम लोग, लेकिन CENTER भी सही है। अच्छा, थिएटर का स्पेलिंग हम लोग लेफ्ट वाला ही लिखते हैं। आप देख सकते हो सारे के सारे वर्ड जो है हम लोग सीखते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, वो सारे ब्रिटिश इंग्लिश है। जानते हो क्यों? क्योंकि भारत में इंग्लिश की जो शिक्षा है वो अंग्रेजों ने फैलाई थी। अंग्रेजों ने भारत में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुलवाए थे। लॉर्ड मैकॉले नाम के एक अंग्रेज थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजी के स्कूल्स खुलवाए थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोलने की सिफारिश की थी, और उसके बाद ही भारत में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुली, और पहले 5 तक खुली, फिर बड़े रूप में लेती चली गई स्कूलें, और आज तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना एक गर्व की बात मानी जाती है, इंग्लिश जानना एक गर्व की बात मानी जाती है। लेकिन इसको शुरू किया था लॉर्ड मैकॉले ने। लॉर्ड मैकॉले के द्वारा इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने के पहले भारत में जो स्कूलें चलती थी वो इवन हिंदी में भी नहीं, वो संस्कृत की स्कूलें चलती थी, और पारसी, जिसको पर्शियन बोलते हैं, पर्शियन PERSIAN, पर्शियन भाषा की स्कूलें चलती थी, और संस्कृत भाषा की स्कूलें चलती थी। ऑब्वियसली हिंदी तो उसमें होता ही था, लेकिन संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय पहले भारत में चला करते थे, और बहुत सारे विद्यालय में पारसी भाषा भी जो है सिखाई पढ़ाई जाती थी। तो पारसी, संस्कृत और हिंदी, ये 3 भाषाओं की पहले स्कूलें हुआ करती थी।
और स्टूडेंट्स ये जो हुआ था ये 1835 में हुआ था। 1835 की बात मैं कर रहा हूँ। 1835 1835 एडी में लॉर्ड मैकॉले ने जो उस वक्त भारत में लगभग ब्रिटिश का ही शासन जो है चल रहा था, तो अपने उच्च अधिकारी को उसने ये सलाह दी थी 1835 में कि भारत में अंग्रेजी स्कूल शुरू किए जाए ताकि भारत हमारा किसी न किसी ढंग से गुलाम ही हमेशा रहे। और और उस समय तक जो इंग्लिश है वो लगभग इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी थी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने के कारण अंग्रेजी का वैसे भी बहुत ज़्यादा उस वक्त तक भी बहुत डिमांड हो गया था, ज़रूरत हो गई थी। और फिर लॉर्ड मैकॉले के इस सुझाव को बहुत खुशी खुशी अंग्रेज अफसरों ने स्वीकार किया और भारत में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोल दी। तो इस तरह से आपकी जानकारी के लिए बातें बता रहा हूँ कि लॉर्ड मैकॉले के द्वारा अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स खुलवाई गई और उसके बाद से भारत इंग्लिश सीखता चला आ रहा है, भारत के लोग इंग्लिश सीखते चले आ रहे हैं। तो हम लोग जो इंग्लिश स्पीक करते हैं या जो लिखते हैं, हमारा जो पूरा एजुकेशनल सिस्टम है जो इंग्लिश को फॉलो करता है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, क्योंकि ब्रिटिश लोगों की द्वारा ही वो इंग्लिश जो है भारत में उसका प्रचार प्रसार किया गया था। अमेरिकन इंग्लिश हम बहुत यूज़ नहीं करते, बहुत ही कम यूज़ करते हैं, और इसीलिए कई लोगों को राइट वाले जो वर्ड हैं वो माने कई सारे वर्ड गलत लग सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे पिछले कुछ सालों से कुछ ऐसे वर्ड्स भारत में इस्तेमाल होने लगे जो अमेरिकन इंग्लिश के भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग ऑर्गेनाइज वर्ड देखें जो नंबर 7 में है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, तो लेफ़्ट वाला तो हम लोग लिखते हैं, लेकिन राइट वाला भी कई बच्चे लिखते हैं और सही माना जाता है। रियलाइज़ का तो इसमें एक एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है। 8 नंबर आप जिससे बुक में देखोगे तो बुक में REALISE ही है लेफ़्ट साइड वाला, यहाँ बाई प्रिंटिंग मिस्टेक दोनों तरफ जेडी लिख दिया। लेफ़्ट वाला REALISE है, राइट वाला REALIZE है। तो दोनों ही हम लोग आजकल कई बार लिखते हैं। डिफेंस जो है मोस्टली लेफ़्ट वाला लिखा जाता है, लेकिन राइट वाला भी कहीं कहीं लिख लेते हैं हम लोग। ऑफेंस भी हम लोग राइट वाला कहीं कहीं लिख लेते हैं। तो कुछ वर्ड्स हैं जैसे ऑर्गेनाइज, रियलाइज, डिफेंस, ऑफेंस में ऐसे यूज़ करना CE की जगह। हम लोग थोड़े बहुत वर्ड्स आजकल अमेरिकन इंग्लिश के यूज़ करने लगे हैं, लेकिन मोस्टली तो ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ होती है। तो कई बार बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर ये वाला वर्ड गलत है। तो यहाँ एक ये एक्सरसाइज जो B दी गई है पेज 53 में, जो हम लोग स्क्रीन में इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये एक्चुअली इंग्लिश की ही है। ये दोनों वर्ड्स ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश है और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। इसलिए एक बात दिमाग में रखना कि कोई बच्चा अगर कभी भी जो है कलर का स्पेलिंग COLOUR नहीं लिख करके COLOR लिखता है, या ट्रैवलर की स्पेलिंग में डबल L नहीं लगा करके सिंगल L लगाता है, तो वो स्पेलिंग सही मानी जाएगी। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्पेलिंग सही मानी जाएगी और कोई भी टीचर, स्पेशली इंग्लिश के टीचर्स, इसे गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टूडेंट्स मैं यहीं तक बना के छोड़ता हूँ। तो इस तरह से मैंने आपके साथ 2 एक्सरसाइज आज शेयर की है। एक तो मैंने जो है क्वारल का 3rd नंबर क्वेश्चन शेयर किया आपके साथ, और उसके बाद मैंने जो शेयर किया है वो है चैप्टर 4 के 6 क्वेश्चन आंसर्स, फिर B नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स, फिर वर्किंग विद लैंग्वेज का मैचिंग, वर्किंग विद लैंग्वेज का B जो कि फ्रेजल वर्ब था, और उसके बाद डायरेक्टली राइटिंग पोर्शन का B जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। ये आपको बुक में ही करना है। ये वाला मैंने जो छोड़ दिया है वो है पेज 52 का C। तो स्टूडेंट्स पेज 52 का C आपका होमवर्क है, ये आपको बुक में करना है खुद से। थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। पेज 52 का C, इसमें अन लगाना है, हर वर्ड के पहले सिर्फ अन ही तो लगाना है, कोई भी चेंज शायद ही होगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रू का अनट्रू, add un to the words below to make their opposites, then look up the meanings of the words you have formed in the dictionary। तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है, सारे वर्ड्स के पहले अन लगा देना। फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाइड का होगा अनआइडेंटिफाइड, और C के 10 वाला जो है आंसरेबल का होगा अनआंसरेबल। तो सब में अन लगाना है, ये तो खुद ही कर लोगे आप। और राइटिंग में मैंने B नंबर शेयर कर लिया आपके साथ अभी भी, और कुछ
एक आध क्वेश्चन और बच गया है, जैसे राइटिंग का ए बच गया है, वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो. प्लीज़ राइट डाउन द answers which I am sharing with you in your notebook, and thank you very much.